Hi, good afternoon, children. Welcome back to our class, Footprints Without Feet. Yesterday, I just read the lesson for you and I told you about the author, H.G. Wells. Today, I am going to give you a little bit of summary. Okay? And I think you have got a lot of confusion about making CW copies. But I've told you to make a fair copy with the word meanings. It's not difficult words. I told you to write the words and its meaning. Okay, lesson wise I need. Chapter wise, from the reader only. From the main reader only, not from the supplementary reader. Main lessons, you have to write chapter name, then whatever words that you want to know the meaning, you must check in a dictionary and please write the word meaning, contextual word meaning. लेसन एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब आपको पता है इस वर्ड का यहाँ पर क्या मीनिंग है. ये when you check the dictionary you will get so many meanings, but pick up those that one which is suitable to that particular context. Is it sure? I need the chapter wise word meanings, not difficult words. Okay, word meanings and the long questions, whatever I have discussed. The rest short questions, extracts, that all we can do after coming back to class. Got it now? The CW copy should be fair with all the difficult words and its meanings. Difficult words in the sense, the words that is difficult for you. It's not for the spelling, but for the word meaning. Sure, got it? Clear? Okay. Now let us come back to our lesson, Footprints Without Feet. You know, this is the name of the book also. Footprints Without Feet. First, let us check the title. You know, footprints. Footprints meaning पैर का निशान. पैर का निशान कब आएगा? फीट हो तब, पैर हो तब, है ना? पैर है तो पैर का निशान भी है. लेकिन यहाँ पर फुटप्रिंट्स है लेकिन फीट नहीं. पैर का निशान आ रहा है लेकिन पैर नहीं दिख रहा है. So this is a situation. And you know what's the matter? The matter is the invisible griffin. Griffin, the scientist, he is a lawless person. Scientist बनने के लिए तो बुद्धि होनी चाहिए, you know that. It's not a joke that one become a scientist. No. A scientist needs a lot of intelligence. Isn't it? बहुत ज़्यादा बुद्धि चाहिए. So scientist वो बंदा है जिसमें अपार बुद्धि है. लेकिन उसने जो भी डिस्कवरी करता है ना, that discovery is for the benefit of the nation, to the humankind, the human generation as a whole. जितने भी innovations, inventions हुए हैं, and that's all for the betterment of the society, है ना? So scientist is a gifted person. He has got a lot of brain. But if he is not disciplined, if he is lawless, L-A-W, law means niyam, कानून. Lawless, you know, careless माने जिसमें ध्यान नहीं है. Senseless माने जिसमें सेंस नहीं है. Sure? So, lawless माने जिसमें नियम, कानून, डिसिप्लिन नहीं है. And becomes very dangerous. बुद्धि बहुत है लेकिन डिसिप्लिन्ड नहीं है. That's the problem with the griffin here. And this griffin, he is a tenant. किसी के घर में किराए पर रह रहा है. आप जानते होंगे इतना बुद्धिशाली आदमी जिसमें कायदा कानून कुछ नहीं,
वो कितना मुसीबत क्रिएट करता होगा उस ओनर के लिए, हाउस ओनर के लिए। तो हाउस ओनर इज फेड अप ऑफ हिम एंड ही वांट्स टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट माने बाहर भगाना। यस, बाहर भगाना चाहता है। ग्रिफिन बहुत हॉट टेम्पर्ड है, इज बैड टेम्पर्ड, इज ईजिली इरिटेटेड, फ्लेयर अप हो जाता है, गुस्सा से पागल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इनडिसिप्लिन, है ना। यस, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो क्या करता है, वो उसी घर को आग लगा देता है। हाउस ओनर की जिस घर में वो भी किराए पर रह रहे हैं उस घर को वो आग लगा देता है। आग लगाने के बाद क्या हुआ, घर वालों ने देख ली आग लग रही है, तो इनको पता है इसी ने की होगी, और लोग इसके पीछे पड़ जाता है, ग्रिफिन के पीछे। तो ग्रिफिन क्या करेगा आपको पता है, भागकर निकलने के लिए लोगों के, क्योंकि कई लोग भाग के आता है ना तो पकड़ा जाता है। नाउ ही हैज नो अदर वे अदर दैन टू रिमूव हिज क्लोथ्स वन आफ्टर द अदर। Nobody knows that he has taken the medicine. His body is transparent. मैंने कल कहा था ना, दवाई खाने के बाद, ड्रग पीने के बाद his body becomes transparent. It remains as solid as a body only, but it becomes invisible to others. जिस पार्ट में कपड़े आ जाएगा, लाइट का आना जाना रोक लेगा, उतना ही जगह विजिबल होगा, बाकी जगह remains invisible, transparent. You got it? So Griffin had no other way than remove his clothes one after the other. So slowly he becomes totally invisible. That means पूरी तरह हो गया नंगा. And he comes out of the house. भाग के आ रहे. अब घर वाले ढूंढते रह जाओ, कहाँ गया पता ही नहीं. And while coming down the steps of the house in London, in the middle of London, he stepped into some kind of muddy water. आते आते उसकी पैर, नंगे पैर है, वो पैर किसी कीचड़ में आ जाता है. कीचड़ लगने के बाद आपको पता होता है ना, छप जाता है ना. पैर के निशान फिर कीचड़ सूखने तक छपता रहता है. एंड दो लड़के भी संग संग आ रहा था. एंड टू बॉयज वेर सरप्राइज्ड टू सी द इम्प्रिंट्स, द मडी इम्प्रिंट्स. मडी माने कीचड़ वाली, इम्प्रिंट्स पैर का निशान फ्रेश आ रहा है, जैसे कि कोई जा रहा है वहां से, लेकिन आदमी नहीं दिख रहे. And it was a remarkable sight for them. It was a really surprising sight for them. They couldn't believe their eyes. Imprints are formed and the feet is not visible. अब एक नहीं, ऐसे लग रहे जैसे कि पैर का निशान नीचे की तरफ आ रहा है. मीन्स डिसेंडिंग द स्टेप्स, नीचे आ रहा है, पैर सीढ़ियों से नीचे आ रहा है. अन बच्चों ने पीछा किया, देखते क्या होगा. और आपको पता है कुछ देर तक वो छपता रहा. उसके बाद जैसे पैर की कीचड़ निकल गया, इम्प्रिंट्स आना, फुटप्रिंट्स आना भी बंद हो गया. फिर वो पूरी तरह गायब हो गया. अब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया. इट वॉज ए मिस्ट्री. ये राज सा, एक रहस्य था, एक अजीबोगरीब चीज था. ये क्या हो रहा है? लेकिन ये क्यों हुआ है हमारे को पता है. किसने किया? ये कोई मिस्टीरियस चीज तो है ही नहीं. ये किसने की? ग्रिफिन ने की. यस, तो फिर हमारे को ये बता देता है कि ये किसी कमाल की चीज तो नहीं था. ये था ग्रिफिन की करतूत, जो घर से इस तरह बचने के लिए कपड़ा उतार के भाग रहा था. बेचारा आदमी अब कहाँ है? ही इज इन द लंदन स्ट्रीट एंड इट इज मिड जनवरी.
मिड जनवरी आपको पता होता है, एक्सट्रीम विंड। यस, तो ग्रिफिन का बाहर निकलने का समय बहुत खतरनाक था। नंगे नंगे होके बाहर निकलाने का समय बहुत खराब था। इट वॉज चिल विंडो एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। काफ़ी देर तक घूमता रहा सड़कों पे और उसको लगा कि अब कपड़े बिना वो रह नहीं सकता। अब ही वेटेड टिल द क्लोजिंग टाइम ऑफ द शॉप्स। दुकानें, अंदर घुसेगा तो कपड़ा पहनेगा तो दिखाई देगा ना। अंदर इनविजिबल तो घुस सकता है किसी भी कपड़े में, लेकिन जब कपड़ा पहन दे ही वो दिखाई देगा, फिर प्रॉब्लम होगा। सो ही वेटेड टिल द क्लोजिंग टाइम ऑफ द शॉप्स एंड क्लोजिंग टाइम के आसपास वो किसी दुकान में घुस गया एंड ही वेंट टू ए शॉप। वहाँ क्या था? इट वॉज ए काइंड ऑफ, आप कह सकते हो मॉल टाइप, जिसमें सब कुछ है एंड दैट वॉज, खाना भी मिल जाए, कपड़ा भी मिल जाए, रेस्टोरेंट में खाना भी, वो जो है ना दारू वारू सब कुछ है। और नाउ ऐसे जगह वो घुस गया। विदाउट बीइंग सीन ही एंटर्ड इनटू द शॉप एंड बाय द टाइम उन लोगों ने शटर डाल दिया, ताला लगा दिया और घर के शॉप के कर्मचारी चले गए। अब ग्रिफिन का इस समय ही इज इनसाइड। अब उसने क्या किया? उसने सारा लॉलेसनेस, कायदा कानून नहीं, उसने सारा कपड़े का रापोस खोल दिया। कुछ उसका फिट आया, नहीं आया तो फेंक दिया। जो वार्म क्लोथ्स की तलाश में वो वार्म क्लोथ्स ढूंढ लिया। क्या क्या पहना? क्या क्या पहना? ओवरकोट पहना, शर्ट पैंट सब कुछ, ओवरकोट, शूज, वाइड ब्रिम्ड हैट, बिल्कुल चौड़ा जो है किनारा वाला हैट भी पहन लिया और उसके साथ ही बिकेम ए फुल्ली विजिबल पर्सन। और रेस्टोरेंट के किचन में जाकर कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी गर्म करने का कोई सुविधा इसके पास नहीं था, जो ठंडा हो चुका था वो खा लिया। फिर स्वीट्स भी ले लिया। उसके बाद वो क्विल्स अपने, आपको पता है क्विल्ट माने रजाई, यस, रजाई की ढेरों में घुस के सो गया। खाया पिया, वाइन भी पी लिया, स्वीट भी खा लिया, कपड़े भी पहन लिया एंड दिस फेलो स्लेप्ट इन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स। कहते हैं ना, जिस बंदा कायदा कानून नहीं जानता है हर जगह फ्लॉप हो जाता है। एंड ही स्लेप्ट, सुबह उठ के निकल जाता तो बढ़िया था। दुकानदार या दुकान के जो एम्प्लॉइज दुकान खोलने के पहले आते तो पहले वो चला जाते तो बढ़िया था, बट ही स्लेप्ट ऑफ। इसमें लिखा है अगर ग्रिफिन समय पर उठ जाता तो सब कुछ सही सलामत हो जाता, लेकिन ग्रिफिन उठा ही नहीं। जब सुबह लोग आए, एम्प्लॉयर्स आए, उसने दुकान खोला। खोलते ही उनको कुछ गड़बड़ नजर आया, कारण रापोस इधर उधर सारे फैला पड़ा है। दे अंडरस्टूड दैट somebody has entered the closed shop and they searched, finally ढूंढ लिया। जब उन्होंने देखा कि लोग उसकी तरफ बढ़ रहा है, वहीं से वो डर गया एंड इसको पकड़ने के लिए जब पीछे भागा लोग, क्या किया? द सेम थिंग, he removed his clothes one after the other and finally he became totally invisible. The second time he is again in the street in the chill wind. Okay, अब परेशान हो गया, कुछ तो करना ही पड़ेगा, पूरा डे टाइम ऐसे निकाल नहीं सकता। ये ढूंढता रहा। अब इसने सोचा कि पैंट्स शर्ट कैप से काम नहीं चलेगा, कारण आंख के ऊपर भी कुछ लगाना होगा,
कान के वहाँ पर भी कुछ लगाना होगा, गर्दन के ऊपर, सिर पर, टोपा के बीच में काफ़ी चीज़ें होती है ना, वो चीज़ एम्प्टी है, खाली है। जैसे दाढ़ी नहीं, नोस नहीं दिख रहे, मुंह नहीं दिख रहे, गाल नहीं दिख रहे, कान के साइड वाला जगह नहीं दिख रहे, एंड इट विल क्रिएट डाउट। लोग डर जाएगा, पीछे पड़ जाएगा, दिक्कत है। कहीं भी जाओगे, ही विल इन्वाइट अदर्स अटेंशन, सो ही हैज टू कवर एवरीवेयर, ऑल द पार्ट्स। वो कैसे हो सकता है? ऐसे कपड़ा ही कहाँ है जहाँ पर कान भी मिल जाए, नोस भी मिल जाए, आपको मूंछें भी मिल जाए, दाढ़ी भी मिल जाए। एंड दैट इज अ प्लेस वेयर यू गेट थिएट्रिकल शॉप्स, है ना। थिएट्रिकल शॉप आप भी जानते हैं ना, ड्रेस मटेरियल से मिल जाता है ना, नकली मूंछें, दाढ़ी सबके साथ, है ना। जैसे शॉप जहाँ से आपको किराए पर कपड़े वपड़े फुल ड्रेस मिल जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ए थिएट्रिकल शॉप। थिएटर माने थिएटर की जैसे चीज़ है। थिएटर माने नाटक, नाटक के उपयोग में आने वाली चीज़ों को किराए पर देने वाली उस दुकान, दैट्स अ थिएट्रिकल कंपनी, ठीक है ना। सो वहाँ पर स्टॉक होता है इस कंपनी का माल इकट्ठा होने वाली। ही एंटर्ड इनटू दैट शॉप इन द डे लाइट, दिन में ही घुस गया। एंड वो वहाँ क्यों घुसा आपको पता है? ही वांटेड टू get clothes as well as something that would hide his empty space above his shoulders, है ना। So that was his need. So he went into the Drury Lane, that's a kind of lane, गली, उस गली में पहुंच गया, and that is the center of the theatre world. वहाँ पर एक शॉप ढूंढ लिया। वो एंट्री तो इनविजिबल है, and he went into the shop invisible. He went upstairs. वहाँ जाकर उसकी मर्जी से सारे कपड़े पहन लिया, बैंडेज पहना अराउंड हिज फोरहेड, माथे के, है ना, पीछे से उसने बैंडेज बांध लिया, ग्लास पहन लिया, डार्क ग्लासेस पहन लिया, फॉल्स नोज पहन लिया, बिग बुशी साइड विस्कस, दैट मीन्स दाढ़ी टाइप, जो कान के सामने जो आदमी के बाल होता है ना, साइड विस्कस वो डाल दिया, एंड ए लार्ज हैट, दाढ़ी सब कुछ कंप्लीटली तैयार हो गए। अब सीढ़ी उधर कर नीचे आया, बाहर निकलना है ना। बाहर निकलते समय क्या देखा? उनके शॉप के सामने शॉपकीपर बैठा है, एंट्रेंस पर ही शॉपकीपर बैठा है। इसने देखा कि वो तो रुकेगा, इसलिए उसने क्या किया, ही पीछे उस शॉपकीपर के पीछे किसी डंडा वंडा उठा कर लाया और एक मारा, जोर से मार के शॉपकीपर को उसने बेहोश कर दिया। उसके बाद इसके ड्रॉयर में जितना भी पैसा था, he robbed him all the money he could find. ओके, पैसा हाथ में आ गया, कंप्लीट कवर हो गया, शूज भी हो गया कंप्लीट, ही इज फुल्ली विजिबल नाउ, एवरी पार्ट इज विजिबल। अब इसको पता है लंदन में इस तरह रहोगे तो, क्योंकि पैच वर्क है, चेहरे पर बैंडेजेस वो ये सब लगा के ऐसे लग ही नहीं रहे कि आदमी एक नॉर्मल सा शक्ल। तो उनको अपने हाउस ओनर ढूंढ रहा होगा, पाले वाले दुकान में जहाँ चोरी किए वो ढूंढ रहा होगा, अब ये वाला अब ये ढूंढ रहा होगा। सो ही वॉज नॉट सिक्योर देयर। उसको लगा कि कोई इसके पीछे पड़ने से पहले, डाउट होने से पहले, बेटर मूव आउट फ्रॉम दिस सिटी। सो ही टुक ए ट्रेन। कहाँ जाएगा? सोचा कि किसी गांव में चलते हैं, है ना। तो ट्रेन में, गांव जाने वाला ट्रेन में बैठ गया और उसने जो गांव उसको पसंद आया, जिसका नाम आता था, वो बोल दिया इपिंग, IPING। ही वेंट टू इपिंग। वहाँ जाते ही उसने 2 कमरा बुक कर लिया। 2 कमरा किस लिए? दैट आई डोंट नो। ही वॉज अ सिंगल पर्सन, बट ही स्टिल बुक्ड
2 rooms. कहाँ पे? एक इन तो पुराने ज़माने की होटल होता है. इन में आपको खाना पीना भी मिल जाता है, जस्ट लाइक द होटल्स. यस, खाना पीना भी मिल जाता है, कमरे के रेंट पर कमरा भी मिल जाता है. तो ही, इवन दो ही वाज सिंगल, ही बुक्ड 2 rooms. अब बात यह है, सर्दी में सिटी में से कोई सा भी बंदा गांव में नहीं आता, क्योंकि गांव में ज़्यादा सर्दी होता है. समर में आता रहता है, कारण गांव सिटी से ठंडा रहता है ना. सिटी में बहुत गर्मी है, गांव में थोड़ा सा राहत है. इसलिए गर्मी के टाइम पर सिटी में से लोग गांव में आते हैं आराम के लिए, लेकिन सर्दी में कभी नहीं आता. सिटी फेलोज कभी भी गांव में नहीं आता. उस समय बिजनेस मंदी जाता है, मतलब इस तरह का रेस्टोरेंट, ये रूम रेंट पर देने वाले को कोई कस्टमर मिलता नहीं. लेकिन इस समय ऐसे एक बंदा आना और एक सिंगल आदमी जिसने 2 कमरे बुक करना, दोनों कमरे का पेमेंट पहले एडवांस में देना, इट वॉज ए नाइस थिंग. एंड ये भाग्य हुआ मिसेस हॉल. मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल दोनों हैं, लेकिन मिसेस हॉल है ज़्यादातर एक्टिव लेडी, जिसका नाम हॉल, HALL है ना. उसको उसने पैसा देकर उनके घर में, उनके इन में वो 2 कमरा बुक करके अंदर गया. मिसेस हॉल को बहुत अच्छा लगा. इवन दो द पर्सन वॉज लुकिंग वेरी ओड, वेरी स्ट्रेंज. इस आदमी गांव में घुसते ही लोगों को टंग्स वॉगिंग हो गया. टंग्स वॉगिंग, टंग्स माने आपको पता, जीभ. वॉगिंग माने हिलने लग गया. कहने का मतलब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी, बिकॉज ही वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रेंज एंड हिज एक्टिविटीज ऑल्सो वेर वेरी स्ट्रेंज. सो अपीयरेंस भी स्ट्रेंज था, उसकी एटीट्यूड भी चेंज था, इसकी जो है बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा अजीब था. एंड इट ऑल सेट ऑल द टंग्स. गाँव में पहुंचने के बाद आपको पता होता है, बातें फैल गया, लोग उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर दी. मिसेस हॉल ने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम मेरे घर में गेस्ट बनकर इस मंदी के समय पर भी मुझे कुछ पैसा देने के लिए आया है, तो बढ़िया है. सो शी ट्राइड टू बी वेरी फ्रेंडली विथ मिस्टर ग्रिफिन, लेकिन ग्रिफिन वॉज वेरी रफ. ही डिड नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. उसने उसको बोल दिया, मेरा यहाँ आने का मकसद सोलिट्यूड, आई वॉन्ट सोलिट्यूड, लोनलीनेस, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करिए. दूसरा, मेरे चेहरे पर कुछ एक्सीडेंट से कुछ इफेक्ट हो रखा है, इसलिए मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी. तो मिसेस हॉल, चलो, उसको लगा कि साइंटिस्ट है, उसने बोल दिया होगा मैं साइंटिस्ट हूँ. तो मिसेस हॉल को लगा कि ही इज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट. एक्सेंट्रिक माने थोड़ा पागल, हाँ. एक्सेंट्रिक माने जो ज़रूर से ज़्यादा है, एक्सट्रीम. तो एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, इसलिए उसने सोचा कि एडवांस भी दे दिए हैं, चलो कोई बात नहीं. उसने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं. एंड महीना चला गया, वो कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलता था, पता नहीं अंदर क्या करता रहता था. मिसेस हॉल ने बहुत ट्राई मारा इनके फ्रेंडशिप में आने की, या उनसे बात करने की, या उसका जो है राज, जो सीक्रेट लाइफ के बारे में जानने की. बट एवरी टाइम ग्रिफिन वॉज वेरी बैड टेम्पर्ड, या इरिटेबल टेम्पर. एंड स्टोलन मनी ख़त्म हो गया था. अब इस लेडी ने बोला, अब आप अगले महीने का पेमेंट दीजिए, है ना. उन्होंने बोला, अब मेरे पास कोई रेडी कैश नहीं है. ठीक, एक चेक आने वाला है, जब चेक आ जाएगा मैंने इसको कैश करवा के आपका पेमेंट दे दूंगा, कोई बात नहीं. तो इस तरह उनका जवाब था. कुछ दिन बाद
उसी गांव में जहां वो रह रहा है उसके आसपास के जगह पे एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ रहता था। क्लर्जीमैन माने पादरी। पादरी कौन होता है? चर्च का जो प्रीस्ट होता है ना। यस, ही वॉज देयर एंड ही इज द क्लर्जीमैन ऑफ द विलेज। वो अपनी मिसेस के साथ अपने घर में रहता था। एक दिन अर्ली मॉर्निंग उनके घर में से कुछ आवाज आना शुरू हो गया। वो ऊपर सोता था, लेकिन नीचे इसका स्टडी रूम था। वहां पर उनका डेस्क होता था, उसके अंदर ड्रॉयर में हाउस कीपिंग मनी रखा हुआ था। हाउस कीपिंग मनी माने जो घर के खर्च के लिए रखा हुआ पैसा, वो उसी की ड्रॉयर में ही था। एंड अर्ली मॉर्निंग क्लर्जीमैन और उसकी मिसेस ने नीचे कुछ आवाज, अजीब सा आवाज आते सुनाई दी। इनको सचमुच आभास हुआ कि इस कमरे, नीचे वाले कमरे में कोई है और वो उस ड्रॉयर से पैसा निकाल रहे। कॉइन का जो क्लिंकिंग साउंड है ना, चिंग ऑफ द कॉइन। यस, कॉइन जब निकालता है ना एक साउंड आता है ना, सिक्का निकालते तो साउंड नहीं आता। यस, द चिंग ऑफ द मनी वॉज बीइंग हेard फ्रॉम द डेस्क। अब क्लर्जीमैन को पता चल गया चोर इस कमरे में ही है। उसने क्या हुआ, एक पोकर, एक डंडा हाथ में लेकर धीरे धीरे चुपचाप वो सीढ़ियां उतरते नीचे आया। आने के बाद उसने एकदम दरवाजा खोल दिया और बोला, सरेंडर, आत्मसमर्पण करिए, मतलब मैं मारूंगा तेरे को। क्योंकि इसको पता था कि वो वही है। लेकिन वो इतना आश्चर्यचकित हो गया कि कोई नहीं, कमरा बिल्कुल एम्प्टी। उनकी वाइफ और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। बोला, नहीं, इसी वक्त तक, दरवाजा खोलने तक अंदर से आवाज आ रहा था। अभी आदमी गया कहाँ? उन्होंने क्या किया, कर्टन के पीछे देखा, इवन द चिमनी है उसके अंदर तक भी जाके देखा कि पता नहीं कहाँ छुप गया। लेकिन किसी का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे उसको डाउट हुआ था वैसे ही हुआ, हाउस कीपिंग मनी गायब हो गया। क्लर्जीमैन सचमुच परेशान हो गया। इनको लगा कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, मतलब अजीबो गरीब इंसिडेंट। और पूरा दिन उसने यही बोलता रहा, ये बहुत अजीब हो गया। Okay, I'll continue tomorrow in the next class. Thank you and have a nice day.